بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ کتابیں جن میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی پوری تاریخ لکھی ہے آج بھی موجود ہے، اور وہ کتابیں جنہیں لکھنے کو علماء نے سونے کے خزانے ٹھکرا دیے تھے لیکن علم بیچا نہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کبھی سوچا ہے اگر آج ہمارے پاس تاریخ تبریز، تاریخ ابن کثیر اور ابن خلدون کی کتابیں نہ ہوتی تو ہمیں اسلامک گولڈن ایج کے بارے میں کون بتاتا؟ دوستوں، یہ کوئی سادہ کتابیں نہیں ہیں، بلکہ وہ امانت ہیں جو علماء نے اپنی جان دے کر امت تک پہنچائیں۔ جب پوری امت فلسطین کھو کر بے پرواہ ہو گئی تھی، تب دمشق کا ایک عالم اپنے طلبہ کو پڑھا رہا تھا، ایک دن مسلمان فلسطین ضرور فتح کریں گے، اور ان طلبہ میں ایک شاگرد وہ بھی بیٹھا تھا جس نے آگے جا کر مسجد اقصی پر اسلام کا جھنڈا پھہرایا۔ اتہاس صرف تاج محل اور قلعوں تک کا نام نہیں ہے، اتہاس وہ ہے جب کتابوں کو دریا میں پھینک دیا گیا اور پانی کالا ہو گیا، اتہاس وہ ہے جب مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کو حرام قرار دیا اور یورپ نے اسی مشین سے دنیا جیت لی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں اسلامی تاریخ کی وہ داستان جو روح کو جگہ دے گی۔ علم کبھی سونے سے نہیں تولا گیا۔ امام طبری کے سامنے سونے کے ڈھیر رکھ دیے گئے، مگر انہوں نے صرف اپنی معمولی تنخواہ اٹھائی، کہا میں علم بیچتا نہیں ہوں۔ دوستوں، یہی ہے ہماری اصلی تاریخ، یہی ہے ہمارے اصلی ہیروز۔ جب بھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں لوگ بار بار ایک سوال کرتے ہیں، بھائی ان باتوں کا سورس کیا ہے؟ یہ سب باتیں آپ لاتے کہاں سے ہو؟ اسلامی تاریخ کے ان واقعات کا اصل حوالہ کیا ہے؟ تو سن لو، یہ سب ہماری باتیں نہیں بلکہ پوری اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں پوری دنیا میں اسلامک ہسٹری کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر، ابن خلدون اور ایسی نہ جانے کتنی کتابیں۔ لیکن اصل سوال یہاں سے بھی بڑا ہے، آخر ان سب کتابوں کا سورس کیا ہے؟ یہ کتابیں کہاں سے آئیں؟ انہیں لکھنے والے علماء اور مفسرین نے آخر یہ علم کن سے لیا؟ اس کا قصہ بہت ہی دلچسپ اور روحانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی کوئی تاریخ لکھوائی ہی نہیں۔ کیونکہ اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابہ کرام اب بھی زندہ تھے، ہر مسلمان کو بدر، احد، خندق جیسی جنگوں کے واقعات یاد تھے، لیکن وقت گزرتا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ نئی نسل کے مسلمان اسلامی جنگوں، اپنی اصلی ہیروز کو بھولنے لگے، یہاں تک کہ نوجوان اسلام کے شجاع بہادر ہیروز جیسے خالد بن ولید اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر رومن اور فارسی ہیروز جیسے ہیرکلیس اور رستم سے متاثر ہونے لگے۔ یہیں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک خلیفہ کو بھیجا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی مشہور عالم ابن شہاب جوہری کو بلایا اور حکم دیا، جاؤ مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاؤ، ہر جگہ جا کر لیکچر دو تاکہ امت اپنے اصل ہیروز کو نہ بھولے۔ اس دور میں چند آخری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ ابن شہاب نے ان سے سیدھے سیرت سیکھی اور اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ انہی شاگردوں میں دو بڑے نام تھے، ابن اسحاق اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ابن شہاب نے اسلام کی تاریخ پر پہلی کتاب لکھی، لیکن افسوس جیسے ہی انہوں نے کتاب مکمل کی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز شہید کر دیے گئے، اور ان کے شہید ہوتے ہی صرف 30 سال بعد پوری بنو امیہ کی خلافت بھی ختم ہو گئی۔ ساتھ ہی ابن شہاب کی لکھی ہوئی پہلی تاریخ کی کتاب بھی دنیا سے غائب ہو گئی۔ لیکن اسلام کی تاریخ کا سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ بنو امیہ کے بعد عباسی خلافت، عباسیوں میں بھی بہت سی کمزوریاں تھیں، لیکن ایک چیز ان کی تاریخ میں بے مثال تھی، علم اور کتابوں سے محبت۔ یہاں تک کہ ایک عباسی بادشاہ نے صرف افلاطون
प्लेटो की एक किताब लेने के लिए रोमन बादशाह से जंग खत्म कर दी थी। अब्बासी खलीफा मंसूर ने बगदाद को नया राजधानी बनाया। उसमें दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विल्टम। यहीं पर उन्होंने इब्ने शहाब के शागिर्द इब्ने इसहाक को बुलाया और हुक्म दिया कि एक ऐसी किताब लिखो जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक पूरी तारीख शामिल हो। इब्ने इसहाक ने यही किया और मुसलमानों की पहली मुकम्मल तारीख लिखी। लेकिन अफसोस, ये किताब भी दुनिया से गायब हो गई, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों को पेपर कागज की टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था। किताबें महंगे मटेरियल पपीरस पर लिखी जाती थीं, जो जल्दी खराब हो जाता था। पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ चीन के पास थी और उन्होंने इसे दुनिया से छुपा रखा था। लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखो, मुसलमानों और चीनियों के दरमियान एक बड़ी जंग हुई, जिसमें मुसलमानों ने फतह हासिल की और हजारों चीनी कैदी हाथ आए। इन्हीं में से कुछ लोग पेपर बनाने की कला भी जानते थे। यहीं से मुसलमानों ने पहली बार पेपर बनाना सीखा। इसके बाद आया अब्बासी खलीफा हजरत हारून रशीद। उन्होंने पेपर की अहमियत को समझा और बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री बनाई। यहीं से शुरू हुआ इस्लामिक गोल्डन एज। इस दौर में हजारों किताबें लिखी गईं। उलमा और मुहद्दिसीन की इतनी इज्जत थी जितनी आज किसी रोनाल्डो या मेसी की होती है। इसी दौर में सही बुखारी, सही मुस्लिम और अहादीस की दूसरी किताबें तहरीर की गईं। इब्ने इसहाक की किताब गायब हो चुकी थी, लेकिन उनके शागिर्द इब्ने हिसाम ने उसी पर दोबारा काम किया और इस्लाम की तारीख पर किताब लिखी। आज भी सीरत इब्ने हिसाम हमारे पास मौजूद है। सिर अल-बाकिरी ने किताब लिखी, उनके शागिर्द इब्ने साद ने तबकात लिखी और इसी सिलसिले में एक ऐसी किताब आई जिसने इस्लामी तारीख में सबको पीछे छोड़ दिया, तारीख तबरी। आज दुनिया के तमाम इस्लामी स्कॉलर्स इन किताबों को इस्लामी तारीख का बुनियादी सोर्स मानते हैं। यानी हमारी बातें, हमारे हवाले सब इन्हीं रोशन किताबों और उन उलमाए किराम से आते हैं जिनकी मेहनत ने इस्लामिक हिस्ट्री को हम तक पहुंचाया। ये तारीख तबरी, जो इस्लामिक गोल्डन एज के एक बहुत बड़े आलिम व मुहद्दिस थे, वो बगदाद के एक मदरसे में 10 दीनार की मामूली तनख्वाह पर तलबा को इल्म पढ़ाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को इमाम तबरी की इल्मी काबिलियत और उनकी जहानत का इल्म हुआ, तो उन्हें एक बार उनके मदरसे ने खुश होकर उनके सामने सोने की दीनारों का खजाना रख दिया। लेकिन इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसमें से सिर्फ अपनी 10 दीनार उठाई और फरमाया, यही मेरी तनख्वाह है, इससे ज्यादा मैं एक पैसा भी कबूल नहीं करूंगा। तारीख तबरी में उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्बासी खिलाफत तक के हालात बयान किए। इसके अलावा भी बहुत सारे उलमा और मुहद्दिसीन थे, मगर यहाँ हम सिर्फ उन बुजुर्गों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की तारीख पर बड़ी और बुनियादी किताबें तहरीर फरमाई। तारीख तबरी दरअसल अब्बासी खिलाफत की आखिरी बड़ी तारीखी किताब थी, क्योंकि इसके बाद अब्बासी हुकूमत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। मुसलमान इतने कमज़ोर हुए कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यूरोप के पोप ने उठाया। उसने यूरोप के ईसाइयों को जमा करके मुसलमानों के फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। मगर अफसोस, फ़लस्तीन खो देने के बाद भी बिल्कुल आज ही की तरह उस वक्त के मुस्लिम हुक्मरान और सुल्तान बेपरवाह रहे। फ़लस्तीन को दोबारा फतह करने का ख्वाब उस वक्त के बादशाहों से ज़्यादा उलमा और स्कॉलर्स के दिलों में था। उनमें सबसे बड़े आलिम का नाम था इमाम इब्ने अशाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी इल्मी हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सिर्फ एक किताब के 70 जिल्दें मौजूद हैं। इमाम इब्ने अशाकिर दमिश्क यानी सीरिया के तलबा को इस्लाम की तारीख पढ़ाया करते थे और बराबर ये बताते रहते थे कि एक दिन मुसलमान फ़लस्तीन जरूर दोबारा फतह करेंगे, और हुआ भी यही। उनके ही एक शागिर्द ने आगे जाकर फ़लस्तीन को फतह किया। उसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैह रहमा 2 लाख का लश्कर लेकर फ़लस्तीन की तरफ
रवाना हुए। जब उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे के साथ मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा गाड़ा तो पूरी उम्मत की आंखें नम हो गईं। आज तक पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। लेकिन उसी दौर में बगदाद में एक अजीब किताब लिखी गई जिसका नाम था फजाइले यजीद। उसमें यजीद को इस्लाम का हीरो और नेक इंसान बनाकर पेश किया गया। यहाँ तक कि कुछ मुसलमान वाकई उसे अपना हीरो मानने लगे। जब ये खबर उस वक्त के सुन्नी आलिम इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक पहुंची तो उन्होंने डर महसूस किया कि कहीं आगे चलकर उम्मत यजीद को वाकई इस्लाम का हीरो न मान बैठे। लिहाजा उन्होंने उसकी असल हकीकत को बेनकाब करने के लिए अपनी मशहूर किताब तहरीर की और हमेशा के लिए यजीद की हकीकत उम्मत के सामने रख दी। इधर यह हो रहा था और उधर सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़लस्तीन को फतह कर लिया। सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज में भी एक बड़े आलिम शामिल थे, इमाम इब्ने असीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने लड़ाइयों के साथ साथ इल्म इस्लाम की तारीख पर भी किताब लिखी। उनकी किताब ने न सिर्फ सलाउद्दीन अय्यूबी की जंगों का जिक्र है बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला करने वाले पहले मुस्लिम बादशाह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का तस्करा भी लिखा। लेकिन इस किताब के आखिर में मुसलमानों की तबाही का वक्त शुरू होता है और ये तबाही लाई थी चंगेज खान ने। सलाउद्दीन अय्यूबी के कुछ ही अरसे बाद चंगेज खान मंगोलिया से उठा और एक एक करके मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ता गया। यहाँ तक कि उसका पोता हलाकू खान इस्लामी दुनिया के दिल बगदाद तक पहुँच गया। कहा जाता है कि उस वक्त इस्लामी दुनिया इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि उलमा इल्म अम्र छोड़कर अजीब बहसों में पड़े थे। कोई बहस कर रहा था कि सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। कोई बहस करता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसी रोटी खाते थे। और हमेशा की तरह शिया सुन्नी की आपसी लड़ाई। इसी दौरान हल्कू खान बगदाद पहुंचा और उसने शिया सुन्नी हनफी सफाई किसी को नहीं देखा, सबको मुसलमान समझकर कत्ल कर दिया। इतना कत्ल गारत हुआ कि बगदाद का दरिया कई दिनों तक लाल हो गया और जब किताबें हाउस ऑफ विजडम से दरिया में फेंकी गईं तो दरिया का पानी काले रंग का हो गया। इस तरह इस्लामिक गोल्डन एज का इख्तिताम हुआ। सुल्तान इतने कमजोर हो गए कि कागज भी यूरोप से मंगवाने लगे और अब यूरोप की इल्मी तरक्की आसमान पर पहुंच गई। मगर इसी मासूमी के दौर में इस्लामी तारीख और कुरान की तफसीर पर सबसे बड़ी किताब लिखी गई, तारीख इब्ने कसीर अल बिदाया बिन निहाया, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का तफसीली बयान मौजूद है। इसके बाद एक और बड़े आलिम और मुस्लिम साइंटिस्ट आए, अल्लामा इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी मशहूर किताब अल मुकद्दिमा आज तक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। तुर्की में उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है। बहुत से स्कॉलर्स इब्ने खल्दून को मुसलमानों का आखिरी बड़ा आलिम कहते हैं क्योंकि उनके वक्त तक यूरोप मुसलमानों से इल्म में बहुत आगे निकल चुका था। इब्ने खल्दून की वफात के साल ही यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनबर्ग, जिसने प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया। यह वो मशीन थी जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। एक इंसान अब दिन में 40 नहीं बल्कि 4000 सफ़े छाप सकता था। मगर अफसोस, जब यूरोप में 1000 प्रिंटिंग प्रेस लग चुके थे, मुसलमान उलमा ने फतवा दिया कि ये मशीन हराम है और कहा कि इल्म सिर्फ कलम से लिया जाएगा, मशीन से नहीं। नतीजा ये हुआ कि यूरोप इल्म और किताबों में आगे बढ़ गया और मुसलमान ताजमहल जैसी इमारतें बनाने में लग गए। 300 साल बाद मुसलमानों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आज तक मुसलमान इल्म और तरक्की में यूरोप की मुकाबले में पीछे ही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन किताबों की और मुसलमान के इल्म में यूरोप से पीछे होने की। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इसके बारे में आप अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने इस्लाम की तारीख की जानकारी हो। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।